Close your eyes and mouth and keep your backbone erect, straight. First you should visualize globe in the space. In Vedic process, Earth is our Divine Mother. We are children of Earth. And Sun is our Divine Father. माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या देवहु पिताः स नः पिबर्तु. This in Veda. Earth is our Divine Mother and Sun is our Divine Father. So first we should salute Mother Goddess, Earth, and you visualize that you are living, sitting in the lap of Mother Goddess. And visualize your body is in the space, only lower part of body is touching ground. But whole your personality is in the space. Space is full with divine energy. And your body and earth and whatever is visible, that all are in the space. Visualize in this way and meditate. There are two main points in our body. First, Mooladhara Chakra, they are situated near to tailbone, end of your spinal cord, and Brahma Chakra, that is the top of head. So visualize both in your body. And middle is your heart. Brahma Chakra is the abode of your real self. That supreme consciousness is falling on the Brahma Chakra. That divine light creates life. And life appears into your heart. Manifest form of life is love. Love, life, and light. All are one
reflection of Supreme Divine Consciousness. So pay your attention on the top of head, Brahma Chakra, and visualize that divine light or light of Supreme Consciousness is falling on the Brahma Chakra, and source of divine light is, as I told you, sun. In all scriptures we are reading, sun is God, Surya Narayana. That is the father of all. Suryo Atma Jagatasthasthu Kaschya. We are reading in Rig Veda. The sun is the life of all beings, all creatures, whole universe. So, visualize far away is a rising sun in the space. That is the abode of Supreme Consciousness, and throwing light on the earth. That light is falling on your top of head. So visualize that light is creating life in your body. That life energy flowing from top of head to end of spinal cord. There are different centers in your body. Among these two, that is called chakras. So there are 6 another chakras too, besides these two. So pay your attention, meditate, and you visualize that from Brahma Chakra to Mooladhara, this life energy is flowing. And you can visualize one word, so, yes, oh, so, from Brahma Chakra, and you visualize that you are turning this flow from lower to higher, from Mooladhara to Brahma Chakra. Then visualize hum, one word, hum, so from Brahma Chakra and hum from Mooladhara. Only visualize this way. With your deep breath. When you inhale, visualize so. When you exhale, visualize hum. Deep breathing now start. Slowly, gently, rhythmically, deep breathing. With so and hum. And meditate on it. There are 3 stages in this spiritual path. First from Mooladhara to Brahma Chakra. Second from Brahma Chakra to Sun God. And third
from sun god to infinite consciousness. That's called Parabrahma. So, sun is the symbol of Virat Purusha, and in other words, form of cosmic consciousness. Your body is center of self-consciousness, and beyond self-consciousness and cosmic consciousness is supreme consciousness, that's called Parabrahma. In Bhagavad Gita, Lord Krishna stated, Parabrahma, Param Dhamam, Pavitram, Paramam Bhavan. So that is Parabrahma. Beyond this cosmic consciousness. So first you should try to concentrate on the Brahma Chakra and elevate your consciousness from lower to higher. You will be able to elevate it with only this deep breathing, with visualizing these two holy sounds. So hum. So from Brahma Chakra and hum from Mooladhara. Visualize only. Inhale and exhale, and visualize that when you are inhaling, your energy is flowing from Brahma Chakra to Mooladhara. When you are exhaling, you are bringing energy, throwing energy from lower to higher, ascending energy from Mooladhara to Brahma Chakra. This way. Okay, now you recite 5 times Pranava with me. There are 5 centers related with your consciousness. These centers are symbol of 5 primordial elements: earth, water, fire, air and ether. And these places are situated in your body. There is a first Mooladhara, that is symbol of water, earth, and second Swadhisthana, situated in the root of your generative organ, symbol of water, and third Manipur Chakra is in navel, symbol of fire, and then Anahata Chakra is in heart, symbol of air, then Vishuddha Chakra in your thyroid, symbol of ether. So these 5 primordial elements are called Panchama Bhuta in our language. So you should try to create Om, long sound,
and 5 times in pure attention sequentially in each turn by turn. And in this way, you will be able to elevate your consciousness from these 5 primordial elements, and you will reach in psychic sphere that is called mind, ego and intellect. So these are related with psychic energy, and these chakras are related with energy that is called natural energy. Energy has 2 forms, psychic energy and natural energy. Psychic energy is related with your consciousness, and natural energy is related with your this prakriti, nature. So in other words, nature and spirit. So you will be able to ascend your spirit from nature, and one day the time will come when you will analyze differences between both. So now, pure attention. With attention, try to create sound, first Om, from first chakra, then second chakra, then third chakra, then fourth, then fifth chakra. Then automatically your consciousness will come upper part of your body. So there is mind, ego and intellect. So first, right. ओम भर्गुवः स्वतत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानदेव सवितुर्दुरितानि परासुव भद्रं तन्नासुव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री राम शरणं मम 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 श्री कृष्ण शरणं मम
शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम। करुणानिधान भगवान की असीम करुणा आप सभी के लिए कल्याणप्रद हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। वर्ष तो नहीं, कई महीनों बाद हम यहाँ फिर एकत्रित हुए हैं और इस दौरान में मैं आप लोगों को नारद भक्ति सूत्र, जो हमारे यहाँ प्राचीनतम साहित्य में भक्ति शास्त्र के रूप में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है, उस पर आप लोगों को विचार सुनने को मिलेंगे। मुझे विश्वास है कि उससे भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति का क्या स्वरूप है, भक्ति क्यों करनी चाहिए, भक्ति करने से क्या लाभ होता है, भक्ति के कौन से अंग हैं और उसके यथार्थ बोध से संबंधित सारी बातें आप लोगों को यहाँ सुनने को मिलेंगी। मुझे विश्वास है कि उससे आप लोग लाभान्वित होंगे और भक्ति के नाम पर प्रचलित जो कुछ भी इस समय आप देख रहे हैं, उसका उस भक्ति शास्त्र के रूप में कहाँ तक स्थान है, ये भी आप लोग समझ पाएंगे। दुर्भाग्य है अपने देश और समाज का कि हम प्राचीन शास्त्र के यथार्थ बोध से वंचित हो गए हैं। अधिकांश लोग किसी साधन के विषय में जानते तो हैं, सुना है, नाम पढ़ा है, लेकिन शास्त्रीय विधि उसकी क्या है इसका बोध नहीं है। इसीलिए अनेक प्रकार की भ्रांतियों से ग्रस्त होकर के उस आंतरिक साधन के नाम पर विविध प्रकार के पाखंडों में पड़ जाते हैं और उस शास्त्र विहीन मिथ्या प्रयत्न के द्वारा उन्हें कुछ भी लाभ नहीं हो पाता। गीता में भगवान ने एक बात समझाई है 16वें अध्याय में, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम ह्यर्हसि। इसका अभिप्राय होता है, प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, जो भी कुछ कार्य करना हो परमार्थ की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तो शास्त्र ही उसमें प्रमाण है। शास्त्र प्रमाण के अनुसार ही तुम्हें कार्य और अकार्य करना है व नहीं करना है, इसका निर्णय करना चाहिए। यदि तुम शास्त्र को त्याग करके, विस्मृत होकर के या विमुख होकर के किसी कार्य अकार्य, धर्म अधर्म का निर्णय करते हो, तो वहां पर तुम्हें भ्रांति के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। तुम यथार्थ दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते, सत्य से तुम सुपरिचित नहीं हो सकते, क्योंकि शास्त्र जो है वही अज्ञात के लिए एक ज्ञापक तत्व है। जो कुछ ज्ञात तत्व है उसके लिए शास्त्र नहीं है। शास्त्र का प्रयोजन क्या है, इस शब्द की व्याख्या करते हुए प्राचीन ऋषियों ने बताया कि जो अज्ञात है उसका ज्ञापन कराना
ये शास्त्र का प्रयोजन है। जो आपको ज्ञात है, जो आपकी बुद्धि का विषय है, सामान्य बुद्धि का, आपकी दृष्टि का विषय है, आपके निरीक्षण और परीक्षण का विषय है, उसमें शास्त्र का कोई प्रयोजन नहीं है। उसके लिए शास्त्र कुछ नहीं कहता आपको। शास्त्र तो उन तत्वों का उद्घाटन करता है जो आपके सामान्य बुद्धि की सीमा से परे है, जिसमें आपके सामान्य बुद्धि का प्रवेश नहीं है। उस अज्ञात तत्व का ज्ञापन कराना, यानी अनजाने विषय का बोध कराना, यह शास्त्र का प्रयोजन है। तो यदि तुम किसी अनजाने विषय में बिना शास्त्र का सहारा लिए केवल कल्पना के द्वारा या मिथ्या भ्रांति के द्वारा या किसी के कहने मात्र से, जो कि आप्त पुरुष नहीं है, आप्त काम नहीं है, जिनके वचन आप्त वाक्य नहीं है, उनके कथन मात्र से यदि तुम किसी मार्ग को अपना लेते हो तो उसमें तुम्हें कभी सफलता मिलने वाली नहीं है और तुम भटकते ही रह जाओगे। लेकिन शास्त्र जो है वह आप्त वाक्य है, और आप्त पुरुष वो हैं जिन्होंने उस परम सत्य को अनुभव किया है और अपने कल्पना से अनुभव नहीं किया, बल्कि प्राचीनतम ऋषियों की उस प्रक्रिया से, जिसमें दिव्य ज्ञान का अवतरण उनके दिव्य अंतःकरण में हुआ और उनके बताए हुए दिशा का अवलंबन लेकर के, मार्ग का अवलंबन लेकर के, जिन्होंने स्वयं साधन किया है, साधन करके जिसे समझा है, अनुभव किया है, उनके वाक्य जो हैं वही शास्त्र हैं। और तदनुसार साधन में प्रवृत्त होने पर ही तुम अपने को विकास की दिशा में आगे ले जा सकते हो। तो हमारे यहाँ भक्ति भी एक शास्त्र है। साधन के तीन स्तर बताए गए हैं। उसको स्तर न कहिए, एस्पेक्ट्स कहिए अंग्रेजी में उसके लिए। तो 3 आयाम कहिए तो वो ज्यादा उपयोगी होगा। उसमें कर्म, उपासना और ज्ञान, इसी को वेद में कांडत्रय कहा गया है। त्रय कांड, कर्म, उपासना और ज्ञान। अब इसको यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि आपकी सारी जिंदगी का, आपके सारे एक्टिविटीज का, आपके सारे क्रियाकलाप का जो यानी क्रम है वो इन्हीं तीनों में चलता है। ज्ञान, उपासना और कर्म। अब इनका संबंध किससे है? हेड, हार्ट एंड हैंड। क्या समझे? ज्ञान का संबंध आपके मस्तिष्क से है, उपासना का संबंध आपके हृदय से है, कर्म का संबंध आपके हाथ से है। यानी हाथ है, सिंबल है, यानी सारी कर्म इंद्रियां, ऐसे समझ लो। तो ये जो आपके यानी 3 क्रिया के साधन हैं, उनके द्वारा जो कुछ आप करते हैं उसको 3 भागों में आप विभाजित करके समझ सकते हैं। ज्ञान, उपासना और कर्म। इन तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यानी कर्म को उपासना से आप अलग नहीं कर सकते, उपासना को ज्ञान से आप अलग नहीं कर सकते। ये एक दूसरे से पूर्ण रूप से संबंधित है। और यदि ये कहा जाए कि एक को यदि आप माइनस कर देंगे तो सारा का सारा समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए हमारे यहाँ 3 प्रकार के शास्त्रों का भी सृजन हुआ है। ज्ञान शास्त्र, उपासना शास्त्र और कर्म शास्त्र। इन तीनों प्रकार के शास्त्रों का सृजन हुआ है और इन तीनों का समन्वित स्वरूप जो है वो हमें हमारे ज्ञान के कोश वेद में मिलता है। वेद कांडत्रय कहा जाता है। उसमें ज्ञान, उपासना और कर्म तीनों का हमें दर्शन होता है और एक एक कांड को लेकर के अलग अलग साहित्य का भी निर्माण हुआ है। ज्ञान कांड से संबंधित साहित्य है,
उपासना कांड से संबंधित साहित्य है और कर्म कांड से संबंधित भी साहित्य है। इसके लिए जिन साहित्यों की रचना की गई उनको वेद का अंग मानते हैं और उनको शास्त्र कहते हैं। आप लोगों ने वेद शास्त्र सुना होगा ना, ये वेद की बात है, शास्त्र की बात है। तो वेद और शास्त्र, वेद में तीनों है और तीनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, कहीं एक मंत्र में ही तीनों मिल जाते हैं। एक मंत्र है वेद का जिसमें ज्ञान भी है, उपासना भी है, कर्म भी है। जैसे हम लोग सभी जानते हैं, भारत का कोई ऐसा हिंदू नहीं होगा जो गायत्री मंत्र न जानता हो। गायत्री मंत्र बड़ा प्रचलित मंत्र है और हर एक हिंदू को बताया जाता है कि भाई तुम गायत्री मंत्र का जाप करो। क्यों बताया जाता है कि गायत्री एक ऐसा मंत्र है जिसमें ज्ञान भी है, उपासना भी है, कर्म भी है, जीवन की पूर्णता, इसलिए उसको ब्रह्म गायत्री कहते हैं। यानी ब्रह्म माने वेद, और वेद का जो सार है, वेद का जो एसेंस है, वेद की जो सही शिक्षा है, वेद की जो टीचिंग है, उसका यानी सूत्र रूप में उस गायत्री मंत्र में यानी समावेश है, इसलिए उसकी बड़ी महिमा है हमारे यहाँ। तो ये जो ज्ञान, उपासना और कर्म है, जैसे हर एक व्यक्ति दुनिया में कोई ऐसा नहीं हुआ जिसके यानी बुद्धि तो हो हृदय न हो, यानी हृदय हो बुद्धि न हो, और बुद्धि हृदय हो लेकिन आगे इंद्रियां सक्रिय न हो। यानी जैसे इंद्रियों से युक्त, हृदय से युक्त, बुद्धि से युक्त ही परफेक्ट व्यक्ति होता है, पूर्ण मानव होता है। मानव की पूर्णता इन तीनों के सामंजस्य में है, तीनों के अलग अलग में नहीं है। इसी रूप से वेद इन तीनों के लिए मार्गदर्शन देता है और वेद की पूर्णता इसी में है, निहित है कि वो ज्ञान का भी कोश है, उपासना का भी कोश है और कर्म का भी कोश है। अब इसके लिए हमारे यहाँ ज्ञान में मंत्रों को लेकर के अलग अलग डिस्कशन करके, व्याख्या करके अलग शास्त्र का निर्माण हुआ। उपासना के लिए अलग शास्त्र बन गए और कर्म के लिए अलग शास्त्र बन गए। तो ये जो तीन प्रकार के शास्त्र बने, ज्ञान, उपासना और कर्म से संबंधित, उनकी अपनी अपनी महिमा है स्वतंत्र रूप से। अब दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो केवल कर्म ही करता हो, जिसके पास ज्ञान न हो, भाव न हो। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो केवल उपासना ही करता हो, कर्म और ज्ञान न हो। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं जो केवल ज्ञान का ही चिंतन कर, जिसके पास उपासना और कर्म न हो। असंभव है। जैसे ये तीन नाम हैं इनके, लेकिन एक दूसरे से यानी नित्य संबंध रखते हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। किस प्रकार से? जैसे मनुष्य को उसके मस्तिष्क, हृदय और इंद्रियों से या हाथ से अलग नहीं किया जा सकता। केवल हाथ मनुष्य नहीं है, केवल हृदय मनुष्य नहीं है, केवल यानी मस्तिष्क मनुष्य नहीं है। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, सामंजस्य है, इनमें जो यानी एक प्रकार से समन्वय है, वही मनुष्य का यथार्थ स्वरूप है। इसी प्रकार से ज्ञान, उपासना और कर्म, ये तीनों तीन अलग अलग रास्ते नहीं हैं। दुर्भाग्य से कुछ शताब्दियों पूर्व हमारे देश में एक ऐसा मूवमेंट चला जिसमें इन तीनों को अलग अलग स्वतंत्र मार्ग घोषित किया गया। कर्म मार्ग स्वतंत्र मार्ग है, उपासना मार्ग स्वतंत्र मार्ग है, ज्ञान मार्ग स्वतंत्र मार्ग है मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये एक भ्रांति थी और इसका परिणाम असुखद हुआ, सुखद नहीं हुआ। इसलिए हमारे यहाँ जैसे वेद में कर्म, ज्ञान, उपासना का सामंजस्य है, समुच्चय है, ऐसे वेद के सार रूप में व्याख्या करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमद् भगवद गीता में इन तीनों का पूर्ण सामंजस्य स्थापित किया है। गीता ज्ञान, उपासना और कर्म का कोश है, कर्म विज्ञान का कोश है। उसमें किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं है, कमी नहीं है। वो पूर्ण दर्शन है अपने आप। मनुष्य को एकांगी नहीं बनाती हो। गीता का बहुत ऊंचा स्थान है। क्यों स्थान है ऊंचा? इसलिए कि वो किसी एक मार्ग का प्रतिपादन नहीं करते। एक मार्ग को एक संप्रदाय कहते हैं हमारे यहाँ, और जहां पर संप्रदाय का स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाता है वहां पर अधूरापन होता है। अधूरापन जो है वह मनुष्य के जीवन में कभी भी पूर्णत्व की प्रतिष्ठा नहीं कर पाता। इसलिए
भगवत गीता एक पूर्ण ग्रंथ है अपने आप में, पूर्ण शास्त्र है अपने आप में। और भगवान ने स्वयं श्रीमुख से कहा है कि ये जो मैं तुम्हें बताया हूं अर्जुन, ये शास्त्र है। इदम गुह्यतमम शास्त्रम, एतद गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। ये गुह्यतम शास्त्र है, यानी संपूर्ण शास्त्र है, परफेक्ट कंप्लीट शास्त्र है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो जैसे गीता और वेद का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वो समुच्चय शास्त्र हैं, उसमें ज्ञान, भक्ति या उपासना और कर्म तीनों का समन्वित स्वरूप हमें मिलता है। इसी रूप से अन्य जो दर्शन शास्त्र रचे गए हैं, उन दर्शनों में भी हमें इनके प्रयोग का समन्वित स्वरूप प्राप्त होता है। ज्ञान का समन्वित स्वरूप, कर्म का समन्वित स्वरूप और उपासना का समन्वित स्वरूप। ये हमें, यानी ज्ञान प्रधान है, उपासना कर्म से समन्वित है, उपासना प्रधान है, ज्ञान कर्म से समन्वित है, कर्म प्रधान है, ज्ञान और उपासना उससे समन्वित है। इस प्रकार का क्रम हमारे यहाँ शास्त्रों में देखने को मिलता है। तो जिस ग्रंथ की मैं, जिस शास्त्र की मैं यहाँ आप लोगों को व्याख्या सुनाने जा रहा हूँ, वह शास्त्र भक्ति शास्त्र है। भक्ति शास्त्र को उपासना शास्त्र कहते हैं। भक्ति के दो भेद हैं, जिसको एक पराभक्ति कहते हैं और दूसरा वैधा भक्ति कहते हैं। वैधा भक्ति वह है जो शास्त्रानुसार आचरण करने, साधन करने की शिक्षा देती है, और पराभक्ति वह है जिसमें आप साधन करते करते अब लक्ष्य तक पहुंच गए। एक साधना भक्ति, दूसरी सिद्धा भक्ति, उसको ऐसा भी नाम दिया गया है, साधना भक्ति और सिद्धा भक्ति। तो साधना भक्ति में और सिद्धा भक्ति में क्या अंतर है? बोले अंतर कोई नहीं है, एक साधना है और दूसरा उस साधना से चल करके सिद्धि को प्राप्त हुई अवस्था है। दोनों अवस्थाओं का उसमें विवेचन किया गया है। तो ये जो मैं आप लोगों को भक्ति शास्त्र की चर्चा सुनाऊंगा, ये सिद्धा भक्ति का स्वरूप है। इसमें साधना भक्ति का भी संकेत है इसमें। और मेरे विचार से श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें भगवान ने स्वयं पराभक्ति के स्वरूप का विवेचन किया है, जैसे श्री रामचरितमानस जो भक्ति का ही स्वतंत्र शास्त्र माना जाता है, इसी प्रकार से यह नारद भक्ति सूत्र जो है वह भक्ति का अनुपम शास्त्र है, और उसमें शास्त्रीय विश्लेषण के साथ भक्ति का निरूपण किया गया है। यानी जो लोग भक्ति का आचरण करना चाहते हों या जो भक्ति मार्ग से चल करके पर ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हों, उनके लिए जो यथार्थ इंस्ट्रक्शंस हैं या निर्देश हैं, वो इस शास्त्र में महर्षि देवर्षि नारद ने दिया है। इस शास्त्र के प्रणेता देवर्षि नारद है। नारद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। भारत का कोई ऐसा हिंदू नहीं जो नारद का नाम न जानता हो, लेकिन कुछ शताब्दियों से नारद शब्द एक प्रकार से ऐसे समझ लो कि गलत अर्थ में प्रयुक्त होता आ रहा है, और नारद के प्रति एक रॉन्ग कंसेप्शन, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, गलत आइडिया बन गया है। यदि कोई व्यक्ति इधर से उधर चुगली करता है, पिसुल जिसे कहते हैं, तो वो कहते हैं, तो वो चाल में लोग कहते हैं ये तो जान दो नारद है। नारद माने चुगलखोर। ये जो एक रूप प्रचलित हुआ, ये एक बहुत ही गलत और रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन माने गलत विश्लेषण का परिणाम रहा है। देवर्षि नारद हमारे यानी पुराण और इतिहास साहित्य में ही नहीं, बल्कि वैदिक साहित्य में भी अपना एक बहुत ही श्रेष्ठतम स्थान रखते हैं। अनेकों वेद मंत्रों के दृष्टा हैं, एक दो नहीं, अनेकों वेद मंत्रों के दृष्टा हैं। नारद वैदिक काल के ऋषि हैं, और नारद की संज्ञा
यानी राजर्षि व ब्रह्मर्षि नहीं है, देवर्षि है। हमारे यहाँ ऋषियों की 3 प्रकार की यानी स्थिति है, संज्ञा है। देवर्षि, ब्रह्मर्षि और राजऋषि। ऋषि 3 प्रकार के हमारे यहाँ कहे जाते हैं। तो देवर्षि 2 हैं, नारद और पर्वत, ये 2 देवर्षि हैं। ब्रह्मर्षि अनेकों हैं और राजर्षि भी अनेकों हैं। ब्रह्मर्षि उन्हें कहते हैं जो वेद के मर्म को जानने वाला हो। ब्रह्म माने वेद, वेद के मर्मज्ञ को ब्रह्म ऋषि शब्द से अभिहित किया जाता है। ब्रह्म ऋषि एक प्रकार की उसकी उपाधि होती है, या जो ब्रह्म तत्व का अनुसंधान करने वाला है उसकी भी उपाधि ब्रह्म ऋषि होती है। वेद का ज्ञाता हो, ब्रह्म का अनुसंधान करता हो, उसे ब्रह्म ऋषि कहते हैं। और समाज शास्त्र में जो निपुण हो, समाज की व्यवस्था में जो निपुण हो, समाज शास्त्र का जो ज्ञाता हो, समाज के स्वरूप का अनुसंधान करके उसके लिए उचित व्यवस्था प्रदान करने की जो क्षमता रखता हो, उसको राजर्षि कहते हैं। तो ये अलग अलग इनकी स्थितियां हैं। राजर्षि की जो कि समाज शास्त्र से संबंधित, समाज से संबंधित, और ब्रह्मर्षि जो कि वेद और ब्रह्म तत्व से संबंधित, देवर्षि जो यानी उस ब्रह्म परमात्मा पूर्ण तत्व पुरुषोत्तम का भी ज्ञान हो और देवत्व से जो पूर्ण रूप से परिपूर्ण हो और उसके साथ ब्रह्मत्व का भी ज्ञान हो, उसको देवर्षि कहते हैं। तो महात्मा नारद को देवर्षि नारद कहा जाता है। ये देवर्षि है हमारे साहित्य में। और दूसरी बात और आपको बताऊं, हमें वैदिक साहित्य में अनेकों मंत्रों के दृष्टा के रूप में देवर्षि नारद मिलते हैं, और साथ ही उपनिषद साहित्य में कई स्थानों पर हमें देवर्षि नारद का दर्शन होता है। छांदोग्य उपनिषद में आप सनत कुमार के शिष्य के रूप में हमें दिखाई देते हैं, और जहां पर जाकर के आपने अपनी योग्यता, अपने ज्ञान की विवेचना की है और कहा है कि भगवान, हमने सुना है कि दुनिया में एक ऐसा तत्व है जिसको जान लेने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, और जिसको जान करके भी यानी शोक से आदमी तर जाता है। तो हमारे पास तो बहुत विषयों का ज्ञान है, लेकिन मैं भी शोक से पार नहीं हुआ। ये देवर्षि नारद जाकर के सनत कुमार से निवेदन करते हैं। तो देवर्षि नारद से सनत कुमार जी पूछते हैं कि भाई, तुम किन किन विषयों का ज्ञान रखते हो? तो वहां पर उन्होंने अपने ज्ञान की एक पूरी लंबी सी लिस्ट दी है, और उस लिस्ट को पढ़ करके ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई ऐसा विषय नहीं है जिस विषय का बोध देवर्षि नारद को न रहा हो। और उन्होंने सारी लिस्ट बताते हुए कहा कि इतना मैं जानता हूं, लेकिन इससे परे भी कुछ है, हमें पता नहीं है। इतना जानने पर मैं शोक से अभी मुक्त नहीं हुआ, लेकिन मैंने सुना है कि एक ऐसा कोई तत्व है जिसका ज्ञान हो जाने पर मनुष्य शोक से तर जाता है। वो कौन सा तत्व है, इससे परे वो कौन सी विद्या है? तो वहां पर उनके गुरुदेव सनत कुमार ने समझाया, तरत शोकम आत्मविद, कहा वो आत्मविद्या है। तुम्हारे पास ये सारी विद्या तो हो गई, लेकिन आत्मविद्या तुम्हारे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव फिर वो आत्मविद्या क्या है, वो हमें बताइए। तो वहां पर छांदोग्य उपनिषद में देवर्षि नारद को यानी वो आत्मविद्या का उपदेश देते हैं। ये तो छांदोग्य उपनिषद में देवर्षि नारद का दर्शन होता है। और साहित्य शास्त्र में वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में ही महर्षि वाल्मीकि के गुरु के रूप में हमें देवर्षि नारद का दर्शन होता है। वहां पर जब एक क्रौंच पक्षी को व्याध द्वारा मारे जाने पर उसके तड़फते हुए, दूसरे जोड़े के तड़फते हुए स्वरूप को देख करके, गति को देख करके, और उनके हृदय में जब व्यथा होती है वाल्मीकि ऋषि के, तो उनके जबान से एकाएक अनुष्ठुप छंद का एक श्लोक निकल पड़ता है, मां निषाद प्रतिष्ठा कुन, ऐसे करते हुए, और वो फिर व्याकुल हो जाते हैं और एकांत में आकर बैठते हैं। फिर सोचते हैं कि मेरे यानी हृदय से ये श्लोक कैसे निकल गया। तो वो निश्चय करते हैं कि अब तो मैं कविता करने में समर्थ हूँ, ऐसे श्लोकों की रचना मैं कर सकता हूँ, लेकिन किसी काव्य की रचना करने के लिए
कोई नायक चाहिए, बिना नायक का कोई काव्य तो बन नहीं सकता, नायक काव्य का मुख्य अंग है। तो मेरे काव्य का नायक कौन हो? तो उन्होंने एक सद्गुणों की लिस्ट तैयार की अपने दिमाग में कि ये सद्गुण जिसमें होंगे वही मेरे काव्य का नायक बनेगा। लेकिन अब ये कौन बता सकता है कि ऐसा कोई नायक है दुनिया में कि नहीं है? तो ये चिंतन करते हुए महर्षि वाल्मीकि अपने गुरु का स्मरण करते हैं। तो वहां पर देवर्षि नारद उनके सामने आ जाते हैं और पूछते हैं, भाई क्या बात है, इसलिए तुम मुझे याद करते हो? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, हम एक ऐसे महाकाव्य की रचना करना चाहते हैं और महाकाव्य की रचना के लिए एक ऐसे पुरुष की जरूरत है जिसमें ये सारे गुण हों, और इन गुणों से युक्त मेरे कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा। तो आप तो सर्वज्ञ हो और तीनों लोक में आपकी गति है, तो इस प्रकार के किसी पुरुष का मुझे नाम बताइए जिसके ऊपर मैं महाकाव्य की रचना कर सकूं। तो ये सुन करके देवर्षि नारद ने फिर अपने शिष्य वाल्मीकि को उपदेश देते हुए प्रारंभ किया। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनश्रुत। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, कहा कि जिस प्रकार के गुणों से युक्त तुम नायक ढूंढना चाहते हो वो तो त्रिलोकी में असंभव है, त्रिलोकी में कोई नहीं मिल सकता। कहा फिर मैं कविता न करूं? बोले नहीं, ऐसी बात नहीं। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनश्रुत, दुनिया में प्रसिद्ध इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राम नाम के जो महापुरुष हैं उनमें जितने तुम गुण की कल्पना किए हो इससे भी कई गुना अधिक गुण विद्यमान है। और उनकी व्याख्या करते हुए समुद्र योगाम भीरो अचलो हिमवानिव, यानी तमाम उनके सद्गुणों की व्याख्या करते हुए वहां पर महर्षि नारद ने उनको मूल राम चरित्र का उपदेश सुनाया। और उसी के आधार पर जो अपने गुरु से सुना, उसी के आधार पर महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण की रचना की। तो ये नारद का दर्शन हमें वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में ही मूल रामायण के प्रवक्ता के रूप में महर्षि महाकवि वाल्मीकि के आदि कवि वाल्मीकि के गुरु के रूप में दर्शन होता है। और फिर पुराण साहित्य में जब हम आते हैं तो पुराण साहित्य में हमें जगह जगह पर नारद का दर्शन होता है। कोई ऐसा पुराण नहीं है जिसमें कि कहीं नारद की एक्टिविटी गतिविधि का हमें दर्शन न होता हो। और आखिर में 18 पुराणों की रचना करने के पश्चात, महाभारत की रचना करने के पश्चात भी जब वेदव्यास जी को शांति नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई, तो वो व्याकुल होकर के सरस्वती नदी के तट पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि इतने ग्रंथों की रचना करके भी मुझे संतुष्टि नहीं हुई, तो अब मैं क्या करूं जिससे मुझे संतुष्टि हो। तो उन्होंने पुनः अपने, उनके भी गुरु नारद थे, तो उन्होंने भी नारद का चिंतन किया। तो वहां पर देवर्षि नारद प्रकट होते हैं और वो कहते हैं उनसे कि तूने महाभारत की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, ये सब कुछ किया, लेकिन इससे तुम्हें पूर्ण तृप्ति नहीं होगी। पूर्ण तृप्ति का केवल एकमात्र साधन है माधव के गुणानुवाद का गान। वो माधव कौन है? तो वहां पर उन्होंने श्री कृष्ण का वर्णन किया है और उनको निर्देश दिया है। तो भगवान कृष्ण के चरित्र का गान करते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। ये श्रीमद् भागवत जो है ये महापुराण है और इसकी रचना करके फिर वेदव्यास जी अपने आप को तृप्त पाते हैं। तो भागवत पुराण की रचना में भी हमें महर्षि वाल्मीकि का उपदेश मिलता है। तो पुराण साहित्य में भी वाल्मीकि नारद के दर्शन होते हैं, महर्षि नारद के, देवर्षि नारद के दर्शन होते हैं। और महाभारत काल में भी देवर्षि नारद के दर्शन होते हैं, वाल्मीकि रामायण में भी देवर्षि नारद के दर्शन होते हैं, वैदिक साहित्य में भी देवर्षि नारद के दर्शन होते हैं, उपनिषदों में भी देवर्षि नारद के दर्शन होते हैं। अब पश्चिम के विद्वानों ने यह निर्णय निकाला कि ये देवर्षि नारद नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, कोई पद है। जो व्यक्ति उस पद को प्राप्त कर लेता है वो देवर्षि नारद कहा जाता है। इसलिए एक नारद नहीं है, अनेकों नारद हुए हैं, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। क्योंकि वो भारत के इस परंपरा ज्ञान से परिचित नहीं थे कि भारतीय लोग कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको अमर मानते हैं और उन अमर आत्माओं में देवर्षि नारद हैं। और उनको इस प्रकार के दिव्य स्वरूप में रहने वाले
योगियों का भी बोध नहीं था, तत्वदृष्टाओं का भी बोध नहीं था, जो कि आज भी हजारों वर्ष के सिद्ध पुरुष समय समय पर किसी कृपा पात्र को दर्शन देते हैं, आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, निर्देश देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। आज भी ये परंपरा चली आ रही है। ये पुरानी बहुत परंपरा है, ऐसी बात नहीं, मेरे साथ अपने साथ बीती हुई परंपरा है। और दूसरी बात, आप लोगों ने पढ़ा होगा यानी स्वामी योगानंद के यानी जीवन को, बहुत लोगों ने शायद पढ़ा हो, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। तो उन्होंने भी यानी अपने जो परंपरा के मूल गुरु हैं उनका उन्होंने उसमें वर्णन किया है बाबा जी के नाम से। और एनी विसेंट का कोई ग्रंथ पढ़िए आप, थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो यानी हो रही है, तो उससे तो ऐसे अनेकों योगियों का उसने वर्णन किया है। और थियोसॉफिस्ट तो इसमें पूर्ण आस्था रखते हैं कि ये सारी दुनिया का जो संचालन है ये एक ऋषि मंडली है, उसी के द्वारा हो रहा है और वही सबका संचालन कर रही है। और समय समय पर विभिन्न देशों में उसके निर्देशानुसार दिव्य आत्माएं प्रकट होकर के काम करती हैं। तो वैसे भी ऐसी अनेकों घटनाएं आप लोगों को सुनने में मिलती हैं कि हिमालय जो है वो अस्ट्रल बॉडी में रहने वाले यानी ऋषियों का एक प्रकार से निवास स्थान है। और जिसने थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रतिष्ठा की थी वो एक रशियन और एक अमेरिकन थे, दोनों थे कपिल तो नहीं थे, साथ थे तब, बाद में कपिल बन गए हो। तो वो दोनों उन्होंने प्रस्थापना की थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। और उनको हिमालय में एक ऋषि मिले और उन ऋषि के निर्देशानुसार उन्होंने कहा कि भारत के उद्धार के लिए यही समय है और भारत अब आगे विश्व को यानी अध्यात्म विज्ञान में लीड करने के लिए खड़ा होने जा रहा है और इसके कार्य का प्रारंभ तुम लोग करो। और उनके निर्देशानुसार उन दोनों ने आकर के थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रतिष्ठा की और बाद में यानी एनी विसेंट उसके यानी संचालक बनी। ये तो बात की बात है, लेकिन पहले वो दो दूसरे थे। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिन्होंने उस अस्ट्रल बॉडी में रहने वाले, सटल बॉडी में रहने वाले दिव्य आत्माओं के दर्शन किए हैं, उनसे निर्देश लिया है, उनसे प्रेरणा प्राप्त की है, उनसे ज्ञान प्राप्त किया है और उस ज्ञान को उन्होंने दुनिया के सामने रखा है, दिया है। यदि आज ये यानी अवस्था संभव है, आज ये स्थिति संभव है और इस प्रकार के अनेकों महापुरुषों के दर्शन होते हैं, तो आज से प्राचीन काल में यानी आज से हजारों वर्ष पूर्व यदि एक नारद नाम के देवर्षि और विभिन्न युगों में अपने उस अस्ट्रल बॉडी से प्रकट होकर के और अनेकों ऋषियों के तत्वदृष्टा महर्षियों को निर्देश दिया हो, उपदेश दिया हो, इसमें कोई अतिशयोक्ति व आश्चर्य वाली बात नहीं है। विशेष करके हम भारतीयों के लिए आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि हम ऐसे योगियों के नाम से परिचित हैं, ऐसे योगियों के गुण से परिचित हैं और स्वरूप से परिचित हैं। हाँ, उन लोगों के लिए जरूर ये असंभव सी बात लगेगी जिन्होंने कभी इस प्रकार के यानी प्रसंग सुने ही नहीं। अब भारत में एक महात्मा है, उनका नाम है कृष्णदत्त ब्रह्मचारी। अब वो बिल्कुल अनपढ़, अशिक्षित और एक छोटी जाति में पैदा हुए व्यक्ति हैं, लेकिन सौभाग्य से किसी को पता नहीं था कि उनके शरीर में दिव्य आत्मा का प्रवेश होता है और वो जो कुछ बोलते हैं वो वेद की व्याख्या होती है। किसी को पता नहीं था। बाल्यकाल में अचानक, लंबी कहानी है उनके जीवन की, वो 3-4 भाई थे, बाद में उनको यानी घर से निकाल दिया और भाइयों ने, तो वो चले आए तो एक ठाकुर थे, उन्होंने अपने यहाँ उनको गोरू चराने के लिए रख लिया। वो जुलाहा के लड़के थे और छोटे से थे उन दिनों। तो ठाकुर ने आए रोते हुए वहां पर, तो गांव का जो होता उसने रख लिया, तो हमारी गाय चराए, गाय भैंस थे, चलाया करो और हमारे यहाँ रोटी खाओ, तो बड़े रोते क्यों हो? तो रख लिया। तो दिन भर उसके यहाँ ठटवारी करते, हमारी भाषा में वो ठटवारी करते थे और उसके पशुओं की संभाल, और रात में सायंकाल को रोटी और जो मिलता खाते थे, सो जाते थे वहाँ। एक दिन उस ठाकुर के यहाँ काशी के एक विद्वान पंडित आए, कोई यज्ञ योग्य करने के लिए, वो बुलाया था उन्हें, और वो रहने वाले थे
मेरठ के पास मुजफ्फरनगर जिला है वहाँ के, या मेरठ जिला मुजफ्फरनगर के वहाँ पर। तो एक दिन की बात, वो पंडित अंदर सो रहे थे, रात्रि में आधी रात में उन्होंने वेद मंत्र की आवाज सुनी। तो पहले बहुत देर तक सुनते रहे, तो उठकर बैठ गए, भाई वेद मंत्र की ध्वनि कहाँ से आ रही है। तो वो जो ठाकुर साहब थे जिसके यहाँ ठहरे हुए थे, उन्होंने देखा कि पंडित जी को नींद नहीं आ रही, क्या बात है। तो उन्होंने पूछा कि पंडित जी क्या बात है, आपको नींद नहीं आ रही। कहा ठाकुर साहब यहाँ वेद मंत्र की ध्वनि सुनाई दे रही है, ये कहाँ से आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने, वो हंसते हुए ठाकुर साहब ने कहा कि ये पंडित जी, वो हमारा जो चरवाहा है ना, वो रात में से बड़बड़ाया करता है, वो रोज रात में से बड़बड़ाता है, कभी कभी हम लोगों को सोने में मुश्किल कर देता है, वो उसने आपको भी सोने में मुश्किल किया, अभी मैं उसे डांटता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कौन चरवाहा। कहा वो जो हमारे गाय भैंस चराया करता है दिन भर, वो जुलाहे का लड़का। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम शांत रहो। उन्होंने लालटेन उठाई और दोनों आए तो वो अपना सोया हुआ सर मार रहा था और व्याख्यान दे रहा था वेद के मंत्रों पर। पंडित जी खड़े होकर सुने। तो उन्होंने कहा ठाकुर से, पागल हो, ये तो किसी ऋषि का अवतार है। कहा क्या बोल रहा है। कहा तो वेद की व्याख्या कर रहा है। वेद की व्याख्या। बोले हाँ। वो खड़े हुए सुने। जब उसका घंटा पूरा हो गया तो उसने अपने व्याख्यान में कहा कि चलो आज का प्रसंग ही समाप्त होता है, शिष्यों कल तुम्हें और बताएंगे। ना कहकर वो शांत हो गए। और उसके बाद में जब सवेरे उठे तो ठाकुर ने आकर के उसके पांव पकड़े और वो तो बेचारा रोए कि मेरे को क्या कर रहे। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे इसमें बात नहीं है। बाद में यानी ये समाचार आगे बढ़ा तो दिल्ली से जो आर्या समाज का विंग है वो जाकर के उसको लड़के को ले आया और फिर उसे सुना करके उसी प्रकार से व्याख्यान करने लगे। अब तो उसकी अनेकों पुस्तकें छप गई हैं उसके व्याख्यान की। और वो जब बैठे रहते हैं तो कुछ नहीं है, बिल्कुल ना समझ, अनपढ़, लिखना भी नहीं जानते। और जब सो जाते हैं तो पहले से सर घूमता है, फिर उसमें श्रृंगी ऋषि का अवतरण होता है। श्रृंगी ऋषि आते हैं, शिष्य उनको प्रणाम करते हैं और प्रश्न करते हैं और विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देते हैं। ये तो अभी की बात है, इस समय प्रचलित अभी वो है, जिसको जाना हो जाकर के देख सकता है दिल्ली में, ब्रह्मचारी कृष्णदत्त। और उसकी अब तक मेरे विचार से 50 पुस्तकें निकली होंगी अब तक उसके व्याख्यान की। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो भारतीय इस युग में भी इस प्रकार की घटनाओं को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनके लिए ये आश्चर्य वाली बात नहीं है कि कोई देवर्षि नारद नाम के महापुरुष हैं जो कि समय समय पर अवतरित होकर के जिज्ञासुओं को दिशा प्रदान करते हैं। उनके लिए आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे यहाँ नारद कई नहीं है, नारद एक ही है। और वो नारद ब्रह्मा के पुत्र हैं, मानसिक पुत्र हैं, बाद में हुए। पहले वो दासी पुत्र थे। उन्होंने स्वयं अपनी कहानी वाल्मीकि रामायण में सुनाई है कि वो देवर्षि नारद कैसे बने, इसका विवेचन उन्होंने स्वयं किया है। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि उन्हीं महात्मा नारद के द्वारा, देवर्षि नारद के द्वारा भक्ति शास्त्र का सृजन हुआ है और वे ही इस भक्ति शास्त्र के आचार्य हैं। हमारे यहाँ वैसे भी देवर्षि नारद को भक्ति का आचार्य माना जाता है। और भक्ति की व्याख्या, भक्ति के स्वरूप की व्याख्या, भक्ति की प्राप्ति की व्याख्या, ये देवर्षि नारद ने बहुत ही उत्तम ढंग से की है। 84 सूत्र हैं उसके, केवल 84 सूत्र। और कुछ सूत्र तो केवल 2 अक्षर के हैं, कोई 4 अक्षर के हैं, कोई 10 अक्षर के हैं, ऐसे सूत्र हैं उसमें 84। और उन 84 सूत्रों में भक्ति की पूरी मीमांसा है। और उसका जो प्रथम सूत्र है, उस सूत्र को पढ़ने से ऐसा ज्ञात होता है कि देवर्षि नारद ने भक्ति शास्त्र की यानी व्याख्या से पूर्व और भी विभिन्न शास्त्रों पर उन्होंने अपने प्रवचन दिए। और आखिर में अब अथातो भक्ति व्याख्या श्याम, ये उसका पहला सूत्र है भक्ति सूत्र का, अथातो भक्ति व्याख्या श्याम। ऐसा अब मैं भक्ति की व्याख्या करने जा रहा हूं अथवा व्याख्या करूंगा, ऐसा कहते हुए उन्होंने उसका प्रारंभ किया है। तो अब मैं भक्ति की व्याख्या करूंगा, इसका अभिप्राय कि अब से पहले मैंने अन्य विषयों की व्याख्या कर दी है, अब मैं भक्ति की व्याख्या करूंगा, ऐसा उसका सारांश निकलता है। और इस भक्ति से संबंधित
जैसे नारद का भक्ति सूत्र है, ऐसे ही एक और महर्षि हुए हैं सांडिल। आपको भारत में सांडिल्य गोत्र के बहुत से ब्राह्मण मिलेंगे, बहुत से लोग मिलेंगे। देवर्षि महर्षि सांडिल्य, वो भी महान पुरुष हुए हैं। उनके द्वारा भी भक्ति सूत्र का प्रणयन हुआ है। भक्ति शास्त्र के वो भी आचार्य माने जाते हैं। नारद भक्ति सूत्र में ही भक्ति के कितने आचार्य हैं उनका एक पूरी लिस्ट है, और उसमें उस लिस्ट में यह समझाया गया है, बताया गया है कि जैसे देवर्षि नारद हैं, ऐसे ही सांडिल्य भी भक्ति शास्त्र के आचार्य हैं। उनका भी भक्ति सूत्र उपलब्ध है। बीच बीच में जहाँ प्रसंग आएगा तो मैं आपको सांडिल्य का भक्ति के विषय में क्या संदेश है वो भी कोट करते हुए, निर्देश करते हुए मैं बताऊंगा, उसमें उदाहरण देते हुए, और साथ साथ में भक्ति के जो अन्य अवयव हैं, जो अन्य अंग हैं, उनकी भी मैं व्याख्या साथ साथ करता रहूंगा। इसमें केवल दो बातें आप लोग याद रख लें। एक तो देवर्षि नारद एक हैं, और वो हमारे यहाँ प्रत्येक युग में जो जिज्ञासु होते हैं उनको आवश्यकता अनुसार निर्देश प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। और वे देवर्षि नारद समस्त वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता हैं, और साथ में वो भक्ति के परमाचार्य हैं। और यहाँ पर वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में, श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में भी उनके हमें दर्शन होते हैं। अन्य पुराणों में भी उनके हमें दर्शन होते हैं। महाभारत में भी उनके दर्शन होते हैं, और उपनिषदों में और वेद में भी उनके हमें दर्शन होते हैं। उनके नाम का, उनके गुण का, उनकी महत्ता का हमें दर्शन होता है। तो देवर्षि नारद भक्ति के विषय में अथॉरिटी हैं। उनसे बड़ी और अथॉरिटी किसी अन्य को नहीं माना जा सकता, ऐसा विद्वानों का कथन है। क्योंकि वाल्मीकि और व्यास जो हमारे यहाँ दो सबसे श्रेष्ठतम ऋषि कहे जाते हैं, जिन्होंने महाभारत और रामायण की रचना की है, उनके भी वो गुरु हैं, उनके भी वो मार्गदर्शक हैं। इसलिए देवर्षि नारद से अधिक अथॉरिटी, बड़ी अथॉरिटी, यानी बड़ा कोई व्यक्तित्व, यानी प्रमाणिक व्यक्तित्व भक्ति शास्त्र में हमें दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। इसलिए नारद के द्वारा प्रणीत भक्ति सूत्र की व्याख्या आप लोग सुनिए और उसे समझिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला सूत्र है उनका अथातो भक्ति व्याख्या श्यामा। अथ, अतः, ये दो शब्द हैं प्रारंभ में। अथ शब्द का निर्देश हमें सभी दर्शन शास्त्र के प्रारंभ में मिलता है। जैसे योग दर्शन का प्रारंभ होता है तो अथ योगानुशासनम, जैसे वेदांत दर्शन का शास्त्र प्रारंभ होता है तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मीमांसा दर्शन का प्रारंभ होता है तो अथातो धर्म जिज्ञासा। और इसी रूप से यहाँ भक्ति सूत्र के विषय में भी अतः भक्ति व्याख्यास्याम, ये जो अथ शब्द का प्रयोग है हमारे यहाँ मांगलिक मानते हैं इसे। जैसे प्रार्थना हम करते हैं कोई शुभ काम करते हुए, जैसे ओम कहते हैं शुभ काम करते हुए, ऐसे अथ शब्द जो है वो मांगलिक है। मांगलिक माने कल्याण करने वाला। इसलिए हर एक दर्शनकार जब अपने दर्शन का प्रारंभ करता है, अपने ग्रंथ का प्रारंभ करता है, तो अथ शब्द से प्रारंभ करता है। अथ शब्द से उस ग्रंथ को प्रारंभ करके और इति में ले जाकर के उसकी पूर्ति करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ अथ से इति तक, जैसे ए टू जेड अंग्रेजी में कहा होते हैं ना, ए टू जेड माने, यानी हमारे यहाँ उसे संस्कृत में कहते हैं अथ से इति तक, यानी प्रारंभ से लेकर के आखिर तक। तो ये जो अथ शब्द है ये ऑस्पिशियस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, मांगलिक है, और प्रभु के यानी स्मरण के साथ संबंधित है, और किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में इसका प्रयोग किया जाता है। अतः शब्द जो है वो अतः शब्द जो है वह ये इंडिकेट करता है
संकेत करता है कि इससे पूर्व महर्षि नारद ने और भी विषयों की व्याख्या कर ली है, अब वो भक्ति की व्याख्या करने जा रहे हैं। अन्य जितने शास्त्र हैं उनकी अपेक्षा नारद ने कहा भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी, भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है। तो भगवान को प्राप्त करने के अन्य जितने साधन हो सकते हैं सबकी व्याख्या करने के पश्चात उन्होंने भक्ति की व्याख्या की। और क्रम में कर्म के बाद उपासना और उपासना के बाद ज्ञान का ऐसा विधान आचार्यों ने माना है। तो यहां पर इसको आखिर में स्थान दिया गया, इसका कारण क्या? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि नारद भक्ति सूत्र में विवेचित जो भक्ति है वह वैधा भक्ति नहीं है, वह सिद्धा भक्ति है। वैधा भक्ति माने जो कि साधना भक्ति हो, वो सिद्धा भक्ति है। भक्ति के श्रेष्ठतम स्वरूप की उन्होंने विवेचना की है, इसलिए उसको सभी साधनों के अंत में उसका वर्णन किया और इसको श्रेष्ठतम साधन बताया। दूसरी बात इसमें यह है कि दुनिया में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक तो बुद्धि के धनी और दूसरे हृदय के धनी। बुद्धि के धनी जितने लोग हैं उसमें न्यूनाधिकता पाई जा सकती है, यानी बुद्धि सबकी विशुद्ध हो, स्टेबल हो, स्थित हो, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह कंडीशन हृदय के लिए नहीं है। क्या समझे? हमारे यहां साधना के राजयोग, कर्मयोग, उपासना योग, मंत्र योग, अनेक प्रकार के योगों का विवेचन किया गया है। लेकिन इन सारे प्रकार के योगों में योग्यता की आवश्यकता है। योग्यता के अभाव में इन योगों का अनुष्ठान नहीं हो सकता। जैसे ज्ञान योगी है तो ज्ञान योगी तो ही हो सकता है जिसकी सूक्ष्म प्रज्ञा होगी। वेद में बताया गया ज्ञान योगी कौन हो सकता है? वेद कहता है दृश्यते प्रज्ञा बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी का, जिसकी कुशाग्र बुद्धि, हमारे कुशाग्र कहते हैं कुश के अग्रभाग के समान पैनी तीखी जिसकी बुद्धि हो, वह ज्ञान मार्ग का अधिकारी हो सकता है। क्या समझे? कुश के अग्रभाग के समान इतनी तीखी पैनी जिसकी बुद्धि है वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी हो सकता है। ज्ञान मार्ग का सब अधिकारी नहीं होते। ज्ञान मार्ग के अधिकार के लिए गीता में भी बताया है, जो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम चेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। और सात्विक बुद्धि से जो युक्त नहीं है वो ज्ञान मार्ग में कैसे आगे बढ़ेगा? और इसी रूप से तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में जहां ज्ञान दीपक का विश्लेषण किया है ज्ञान मार्ग का, वहां सबसे पहले यही शुरू किया है, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई जो हर कृपा हृदय बसाई। यदि सात्विक बुद्धि नहीं है तो सात्विक श्रद्धा नहीं हो सकती। सात्विक श्रद्धा नहीं है तो आप ज्ञान मार्ग के पथिक नहीं बन सकते। और सात्विक बुद्धि माने पैनी बुद्धि, तीखी बुद्धि का, वो तो सबको उपलब्ध नहीं है। दुनिया में आपको 100 में से कितने % मिलेंगे? एक का तो नहीं, एक भी मुश्किल से 100 में से एक मिल जाएगी, कोई नहीं मिलेगी ना। वो एक नया कवि हुआ है, उसने एक रामायण लिखी है, तो उस रामायण में उसने चौपाई लिखी है, कहे भूसुंड सुलभ खगनायक 100 में अब 90 नालायक। लेकिन वो 90 वाली बात नहीं है, हमें तो इस समय उससे भी कुछ आगे बढ़कर के यानी इसकी संख्या दिखाई दे रही है। इसलिए ज्ञान मार्ग के कितने पथिक हो सकते हैं ये मुश्किल है निश्चय करना। कौन हो सकता है, मुश्किल निश्चय करना। अब ज्ञान योग की तो ये दशा है। ध्यान योग की, ध्यान योग के लिए भी विशुद्ध मन चाहिए, उत्कट अभिलाषा, विशुद्ध मन, संयमित जीवन का ये भी बड़ा मुश्किल है। ध्यान योगी बनना ये भी बड़ा मुश्किल है। मन बैठो 1 मिनट के लिए, तो जब आंख खोले रहो तो कुछ नहीं याद आता, वो आंख बंद कर लो तो दुनिया का सारी यानी जैसे जिम्मेदारी है तुम्हारे सर पर आ गई है, और फिर यानी वो नाचता है मन की तुम 1 सेकंड टिक नहीं पाते। आंख खोलो तो फिर वही दुनिया दिखाई देती है।
आंख बंद करो तो मन का नृत्य शुरू हो जाता है। तो ध्यान योग भी सबके बस की बात नहीं है, उसमें भी योग्यता की जरूरत है। ज्ञान योग में भी योग्यता की जरूरत है। और कर्मयोग कहो तो इन दोनों से कठिन है। कर्मयोग इन दोनों से कठिन। पूर्ण ज्ञानी ही कर्मयोगी बन सकता है। पूर्ण ज्ञानी पूर्ण ध्यानी, क्या समझे? पूर्ण ज्ञानी पूर्ण ध्यानी ही कर्मयोगी बन सकता है। क्योंकि कर्मयोग का शर्त यह है कि मामनुस्मर युद्ध च युद्धस्व। कर्मयोग की शर्त यह है कि मन भगवान में लगाओ और हाथ काम में। ये तो बड़ा मुश्किल है। मन भगवान में लगाओ, हाथ काम में लगाओ, तो काम तो कुछ और हो जाएगा। काम कहां से होगा? भगवान कहते यही तो करना है, यही साधना करनी है। मन भगवान में हो और काम हाथ में हो, का इतने नहीं, लेकिन बुद्धि जागरूक हो। जब तक स्टेबल बुद्धि नहीं होगी तब तक तुम कर्मयोगी बन ही नहीं सकते। भगवान ने कहा समाधव अचला बुद्धि तदा योगम वापसी। समाधि के द्वारा, ध्यान के द्वारा समाधि लगाओ, समाधि के द्वारा बुद्धि तुम्हारी अचल हो जाए, अचल बुद्धि के द्वारा तब तुम कर्मयोग का अनुष्ठान कर सकते हो। कर्मयोग इतना वो नहीं है। आजकल किसी से बात करो, भगवान ने गीता में कर्मयोग की बात कही है, मैं तो वही कर्मयोग में विश्वास रखता हूँ। आप क्या करते हो? मैं तो कर्मयोग करता हूँ। कर्मयोग माने दिन भर मेहनत करता हूँ, पैसे कमा कर लाता हूँ, स्त्री बच्चे पालता हूँ, कर्मयोग। अरे भले आदमी, कर्मयोग इसी का नाम है। इसको कर्मयोग नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? कर्म भोग। और तूने भ्रांति से इसको कर्मयोग समझ रखा है। ये कर्म भोग है, ये कर्म योग नहीं है। गीता में भगवान ने इसे कर्मयोग की संज्ञा नहीं दी। कामात्मा न स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान। ये कर्म भोगी हैं, वो कर्म कर रहे हैं, उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। कर्मयोगी कहां बने? कर्मयोगी तो कर्म से मुक्त हो जाता है। कर्मयोगी को कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। क्या समझे? अनिष्ट इष्ट मिश्रम त्रिविधम कर्मणा फलम भवत्य त्यागी नाम प्रेत्या न तो सन्यासी नाम कुचित। गीता में भगवान ने बताया कि 3 प्रकार के कर्म और उनके फल होते हैं। एक इष्ट कर्म, उसका शुभ फल, एक अनिष्ट कर्म, उसका अशुभ फल, दूसरा मिश्रित कर्म, उसका मिला जुला फल। शुभ कर्म का शुभ फल होता है, सुख मिलता है। अशुभ कर्म का अशुभ फल होता है, दुख मिलता है। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो मिले होते हैं, मिश्रित, उसको मिश्रित कर्म करते हैं, उसका दोनों प्रकार का फल होता है। उसमें सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। और यही बात योग दर्शन में समझाई गई है। कर्म अशुक्ल अकृष्ण योगिनम त्रिविधम इतरेसा। अन्य लोगों को 3 प्रकार के फल मिलते हैं कर्म के, शुभ का शुभ, अशुभ का अशुभ, मिश्रित का मिश्रित। लेकिन योगी उसे कहते हैं जो जिसका कर्म न तो शुक्ल है न कृष्ण है। कर्म अशुक्ल अकृष्ण योगिना, वो अशुक्ल है अकृष्ण है, उसका यानी शुभ नहीं है अशुभ नहीं है, शुभ अशुभ दोनों से परे है। जो शुभ नहीं है अशुभ नहीं है, दोनों से परे है, वो योगियों का कर्म है। तो वहां तो फल है ही नहीं कोई। जहां फल नहीं वहां भोगेगा कौन? तब वो कर्म योग बना। और जहां कर्म करके उसके फल की चाह लिए बैठे हुए हो तो कर्म योग नहीं है, कर्म भोग है। तो कर्म योग सबसे कठिन साधना है। वो तो ज्ञान योग और ध्यान योग से भी कठिन साधना है। उसके लिए भी पात्रता बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। लेकिन अब रह गया भक्ति योग। ये किससे संबंधित है? हृदय से। तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास हृदय ना हो। अज्ञानी के पास भी हृदय है। क्या समझे? अज्ञानी के पास भी हृदय है। जो एक महापापी उसके पास भी हृदय है। जो दूसरे को भून करके खा जाता है उसके पास भी हृदय है। कोई ऐसा समय आता है जब उसके हृदय को टच करो तो कांप जाता है, कांप जाता है। हृदय सबके पास है। इसलिए बताया गया कि भक्ति योग जो है वो सबके लिए सुलभ है। और इसी बात को तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में बार बार दोहराया है। भक्ति का मार्ग सुगम है। सुगम क्यों है? क्या इसमें क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसमें क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ध्यान योग में क्वालिफिकेशन चाहिए, ज्ञान योग में क्वालिफिकेशन चाहिए, कर्म योग में क्वालिफिकेशन चाहिए। लेकिन भक्ति योग में इसमें क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आगे आएगा, नारद जी इसकी व्याख्या जब करेंगे। इसमें क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसमें जरूरत क्या है? फिर सारे क्यों नहीं भक्ति योगी बन जाते? कहा यही तो एक समस्या है।
क्यों नहीं बन जाते? अभी मैं ध्यान के समय आपको एक बात समझा रहा था, लाइट, लाइफ एंड लव, सुना होगा आप लोगों ने। उस समय परमात्मा की दिव्य लाइट, दिव्य प्रकाश यहां आपके ब्रह्म चक्र में पड़ता है, जिससे ब्रह्म चक्र में स्फुरणा होती, गति होती है, चेतना का जागरण होता है। और वो चेतना जो है वो वहां से चल करके पहले दो प्रकार के गतिविधि उसमें देती है। एक तो उसमें मूवमेंट शुरू होता है, ऐसे ऐसे, हृदय की धड़कन का जोर से स्पंदन शुरू होता है। जहां पर लाइट पड़ी यहां तहां स्पंदन शुरू हो जाता है। संस्कृत में उसे स्पंदन कहते हैं, अंग्रेजी में उसे मूवमेंट कह दीजिए, और बोलचाल की भाषा में उसे फुरना कहते हैं। स्फुरण, स्पंदन, गति शुरू हो जाती है। अब वो जो गति शुरू होती है ना, अब उस गति का यानी क्रियात्मक स्वरूप क्या होता है? श्वास का अंदर जाना, श्वास का बाहर आना, ये उसका क्रियात्मक स्वरूप है। जहां चेतना यहां पड़ी और चेतन जागृत हुआ तहां ये शुरू हो जाती है। ये कब शुरू हो जाती जानते हो? माता के उदर में जब गर्भ बनता है तो 3 महीने के बाद यहां पर चेतन का प्रकाश हुआ, विवृत्ति मार्ग से आत्मा का प्रवेश हुआ और वहां पर यह काम शुरू हो गया, श्वास प्रश्वास की गति। और जहां श्वास प्रश्वास की गति शुरू हुई वहां पर 2 क्रियाएं और साथ साथ शुरू हो जाती है, एसिमिलेशन एक, और विकास, वृद्धि, यानी दूसरे को समेटना, आहार ग्रहण करना और फिर उसको विकसित करना, ग्रो करना, ग्रो अप करना, ये 2 क्रियाएं और शुरू हो जाती हैं। तो ये 3 क्रियाएं जहां होती हैं उसको कहते हैं यहां लाइफ है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजी में। जहां 3 क्रियाएं शुरू हुई कहते हैं यहां लाइफ है। क्या है वहां लाइफ होने पर? एक तो अपने लिए खाद्य रिसीव कर रहा है, एक अपने लिए एक उसमें अब वृद्धि होने लगी है, और दूसरा आगे चल करके ये जो वृद्धि और यानी रिसीविंग और डिस्चार्जिंग की गति है, इसके साथ अब उसी प्रकार के वो अनेक अन्य तत्वों का भी निर्माण करने लगा है आगे चल करके। ये क्रियाएं मूवमेंट, फीलिंग और ग्रोइंग, ये 3 बातें उसमें हो जाती है। गति होती है, ग्रोइंग होती है और फीलिंग होती है। ये अब ये जो 3 क्रियाएं होती हैं इससे हम कहते हैं कि यहां अब लाइफ है। तो वो लाइट के द्वारा लाइफ का जन्म होता है, और लाइफ की अभिव्यक्ति जब होती है मनुष्य रूप में तो उसको कहते हैं लव। हमारे यहां उसे कहते हैं काम। वेद में काम तो बाद में शब्द बदनाम हो गया, जैसे भक्ति बदनाम हो गई, जैसे क्या बोलते हैं और अन्य शब्द बदनाम हुए ना, ऐसे काम बदनाम हुआ। ये जो यहाँ पश्चिम में काम के लिए लव शब्द का प्रयोग करते हैं ना, सही माने में वो वैदिक शब्द है। कामस्तदग्रे, ऐसा वेद का नासदीय सूक्त है ऋग्वेद का, जिसमें ये बताया गया कि सबसे पहले जीवन जब प्रकट हुआ तो उससे क्या उत्पन्न हुआ। सबसे पहले जब जीवन प्रकट हुआ तो उससे क्या उत्पन्न हुआ, तो वेद कहता है काम। सबसे पहले उससे काम उत्पन्न हुआ। कामस्तुतग्रे संवर्तताधि, कहा उससे सबसे प्रथम उसमें से काम उत्पन्न हुआ। अब काम माने लस्ट नहीं, काम माने सेक्स नहीं, फिर काम माने क्या है? काम माने क्या है जो काम उत्पन्न हुआ? अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं, कभी कभी ये साहित्य की बात है, ये जो प्रेम की बात अपन करते हैं ना, अच्छा वेद में आप ढूंढिए तो प्रेम शब्द आपको उस अर्थ में नहीं मिलेगा। प्रेम शब्द जो है वेद में इसका दर्शन आपको नहीं होगा। वेद में जहां कहीं दर्शन होगा था काम के रूप में, काम वहां दिखाई देगा। तो ये काम शब्द का जो प्रयोग है वो किस रूप में आता है? चाह में। आप दुनिया में जितने कर्म करते हैं, जो कुछ करते हैं, किसके लिए करते हैं? काम की पूर्ति के लिए, और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। काम के बाद फिर कर्म आया है, इसलिए कर्म को भी काम कहते हैं। हमें काम करावें, हम वो काम करावें, बोलचाल में कहते हैं ना, काम का प्रयोग करते हैं। काम माने क्या? काम माने क्रिया नहीं है।
जिसके लिए क्रिया कर रहे हो, जिसकी पूर्ति के लिए क्रिया कर रहे हो, उस तत्व का नाम काम है। और सबसे पहले वही पैदा हुआ है। यदि वो ना पैदा हुआ हो तो काम आप करेंगे? क्या समझे? जिसके लिए आप क्रिया में प्रवृत्त हो रहे हो, उस तत्व का नाम काम है। तो काम, काम के बाद में फिर क्रिया, और इसी काम को व्याकरण शास्त्र में ईप्सा कहा गया है। ईप्सा, इसी काम को चाह कहा गया है। और वही काम जब यानी दूसरे रूप में हो जाता है तो उसको वासना भी कह देते हैं, वासना भी कहते हैं। और यही काम जब विकृत हो जाता है तो उसका नाम तृष्णा हो जाता है। बुद्ध ने उसे तृष्णा कहा है, हमारे शास्त्रों में भी तृष्णा कहा है। तो ये काम जो है, इसकी अभिव्यक्ति होती है। लाइफ के पश्चात तुरंत काम की अभिव्यक्ति होती है। आप बच्चे को देखिए, और बातों के लिए उसे सिखाना पड़ेगा, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो मां ने उसके मुंह में स्तन डाला। अब स्तन डालने वाली तो गति धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो रबड़ की चूसनी क्या समझे? और जहां नेपल, जहां उसके मुंह में डाला, तहां अब उसकी गति शुरू हो जाती है। क्या? चूसने की। अभी पैदा हुआ बच्चा, नवजात, किसने ट्रेनिंग दी उसे कि जब तुम्हारे मुंह में ऐसी चीज आए तो उसको ऐसे से चूसा करो? तो किसी ने ट्रेनिंग दी है? नहीं। वो किसकी महिमा है? वेद कहता है काम की। काम ने उसे प्रेरणा दी है, क्योंकि काम की उत्पत्ति हुई है। और सबसे पहले उस कामना से प्रेरित होकर के वो क्रिया में प्रवृत्त हुआ। क्रिया का मूल स्रोत क्या है? काम। काम से क्रिया का जन्म होता है। ये बात याद रखो। तो वो जो काम है उसको अंग्रेजी में लव कहते हैं। तो लाइट, लाइफ एंड लव, ये तीनों की अभिव्यक्ति एक साथ होती है। जहां ब्रह्मचक्र में लाइट पड़ी, तहां आपकी लाइफ गतिशील हुई, और जहां लाइफ में गति आई तुरंत काम का जन्म हो गया। कॉन्शियसनेस आते ही काम का जन्म हो जाता है। समझे? लाइफ के साथ तुरंत काम का, लव का जन्म हो जाता है। और उस काम की पूर्ति के लिए फिर आप क्रिया में प्रवृत्त होते हैं। फिर आपके अगल बगल जो कुछ साधन है उसका आप प्रयोग करने लगते हैं। वो काम। अब जो भक्ति शास्त्र है वो क्या बताता है? वो कहता है ये जो तुम्हारे पास काम की शक्ति है, काम की शक्ति, उसका तुम प्रयोग करो। किसके लिए? योग के लिए। काम की शक्ति का दो प्रकार से प्रयोग होता है, योग और भोग। या तो तुम उसका प्रयोग भोग में कर सकते हो, या तुम उसका प्रयोग योग में कर सकते हो। समझे? या तो तुम उसका प्रयोग योग में कर सकते हो, या उसका प्रयोग भोग में कर सकते हो। अब ये भी और एक और सूक्ष्म बात समझाऊं आप लोगों को। हृदय उस काम का मूल स्रोत है। हृदय। अब हृदय से नीचे जहां उस काम की गति गई, हृदय से नीचे जहां उस काम की गति गई, वहां भोग का जन्म होगा और उस शक्ति का क्षय होगा। इसलिए जहां हृदय से उस ऊपर काम की गति गई, तहां योग की अभिव्यक्ति होगी और शक्ति की वृद्धि और सृजन होगा। ये नियम है सृष्टि का। हृदय उसका मध्य भाग है। ये अब यहीं से उसको नीचे फेंकना है या उसको ऊपर ले जाना है। तो भक्ति शास्त्र कहता है कि काम को किस प्रकार से मॉडिफाई करके नीचे की बजाय ऊपर ले जाया जाए, बस इसकी विद्या जो है वही भक्ति विद्या है। और बहुत ही प्रैक्टिकल है ये थ्योरी नहीं, केवल बहुत ही प्रैक्टिकल रूप में इस बात को समझाया गया है कि किस प्रकार से उस इमोशन, अंग्रेजी में इमोशन भी कहते हैं उसे, लव इमोशन, हमारे यहां उसको काम भी कहते हैं, भाव भी कहते हैं, दोनों शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए गीता में भगवान ने भाव शब्द का प्रयोग किया। नास्ति बुद्धि युक्त से न चा युक्त से भावना न चा भाव यत शांति शांत से कुतो सुखम। तो उन्होंने कहा कि चेतना जब जागृत होती है तो उस चेतना को तो उन्होंने कहा बुद्धि, और बुद्धि से जो उत्पन्न हुआ हृदय में, इसको मैंने अभी लव बताया, उसको उन्होंने कहा भावना।
अब जैसा यहां होगा वैसे तो यहां होगा ना। यदि यहां दूषित है तो यहां शुद्ध नहीं हो सकता, यह है उसमें विज्ञान। यदि यहां दूषित है, यहां रजोगुण की प्रधानता है, तो यहां जो उत्पन्न होगा वो सतोगुण नहीं होगा, वो रजोगुणी काम होगा। बात समझे? यदि ये बुद्धि आपकी सतोगुणी है तो यहां सतोगुणी काम होगा, यदि यहां रजोगुणी है तो रजोगुणी काम होंगे, तमोगुणी है तो तमोगुणी काम होगा। अब आपके काम है, यानी वो भाव जिसको कहा, वो भाव रजोगुणी है या तमोगुणी है या सतोगुणी है, कौन सा भाव है? ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसास चेत मत्तिवेतान विधि न तो गीता के 7वें अध्याय भगवान ने इसी रथ का उद्घाटन करके बताया। कहा ये जो सात्विक भाव है, राजसिक भाव है, तामसिक भाव है, गीता में उसका प्यूरिफिकेशन किया गया ना। अब काम करते भगवान तो लोग तो काम का दूसरे समझते, तो उन्होंने काम की जगह भाव शब्द का प्रयोग किया। हमने भी इसकी विवेचना की है अपने पुस्तक में, कामना और भावना के रूप में। क्या नाम है पुस्तक? जीवन विज्ञान। जीवन विज्ञान में इसकी विवेचना की है। खैर, तो ये जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये काम जो है इसी को भाव कहा है। अब जब भक्ति हो जाएगी तो भाव बन जाएगा। क्या समझे? भक्ति जब भगवान से जोड़ दो तो ये भाव बन जाएगा, और यदि संसार से जोड़ो तो इसको काम ही कहेंगे। कर्म से जोड़ो काम, और उपासना से जोड़ो भाव। भगवान से जोड़ दो भाव, और संसार से जोड़ दो काम। अब है शक्ति वही, शक्ति दूसरी नहीं है। तो अब वो शक्ति तुम्हारी 3 प्रकार की होगी, सात्विक होगी, राजसिक होगी, तामसिक होगी। और ये तीनों किससे आए? उस चेतन से। वो जो चित्त में चेतन का प्रकाश हुआ तो उसने बुद्धि को जागृत किया। अब बुद्धि तो चेतन हुई ना, बुद्धि को ही जीव कहते हैं, ये बात याद रखो। बहुत लोग ये भी नहीं जानते, बुद्धि का नाम ही जीवात्मा है। और यदि इसको डिफाइन कर दो तो बुद्धिगत चेतन का नाम जीवात्मा है। कुछ भी कहते रहो, बातें की होती है, तो जीवात्मा है। और ये बुद्धि का नाम जो जीवात्मा यहां पर पड़ा हुआ है वो इसलिए कि चेतन जो है यहां बुद्धि में प्रकट हुआ, तो उसका नाम जीवात्मा पड़ गया। अब वो जीवात्मा जो है उसी की अभिव्यक्ति यहां भाव रूप में हो रही है, हृदय में भाव रूप में हो रही है। यदि बुद्धि सात्विक है तो भाव सात्विक, राजसिक है तो राजसिक, तामसिक है तो तामसिक। इसलिए जो भक्ति के रास्ते पर चलने वाले हैं उनके लिए एक, यानी तुलसीदास जी ने निर्देश दिया कि श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुक्त विरति विवेक। अब उनके लिए दो साधनों की बहुत जरूरत पड़ गई, विरति और विवेक। विवेक किसका धर्म है? बुद्धि का। बुद्धि में विवेक होगा ना। तो जो विवेकहीन बुद्धि है वो तो राजसिक बुद्धि होगी, तामसिक बुद्धि होगी। जो विवेक युक्त बुद्धि है वही सात्विक बुद्धि होगी। जब सात्विक बुद्धि होगी तो उससे सात्विक भाव आएगा। राजसिक बुद्धि है, तामसिक बुद्धि है, तो उससे सात्विक भाव नहीं हो सकता, तामसिक भाव आएगा, राजसिक भाव आएगा। राजसिक भाव है, तामसिक भाव है, तो तुम योग की तरफ नहीं बढ़ोगे, तुम भोग की तरफ बढ़ोगे। और यदि सात्विक भाव है तो स्वभावतः तुम्हारे में अच्छाई बुराई का निर्णय होगा, तुम्हारे में सत्य असत का निर्णय होगा, तुम्हारे में उचित अनुचित का निर्णय होगा, तुम्हारे में बंधन और मोक्ष का निर्णय होगा। और इसके नाते तुम कल्याण मार्ग पर आगे बढ़ जाओगे। ये गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने समझाया। तो भक्ति का जो विश्लेषण है इतना तात्विक, इतना दार्शनिक है, जिसमें कि कहीं भी किंचित मात्र भी अज्ञान के लिए स्थान नहीं है। ये बात याद रखो। भगवान कहते हैं हृदय सबके पास है, लव तो सबके पास है, भाव सबके पास है, और सबको भाव होने के नाते भगवान की जरूरत है। आखिर इंसान क्या बनना चाहता है? भगवान। इंसान की आखिरी डिमांड क्या है? भगवान। कोई भी ऐसा इंसान अभी तक नहीं मिला जो भगवान बनना नहीं चाहता। मुझे तो अभी तक मिला नहीं कोई। ये बात याद रखो। वो चाहे जानकर भगवान बनना चाहता है या अनजान में बनना चाहता है, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन इंसान की मंजिल भगवान है। क्या समझे? इंसान की मंजिल ही भगवान है। और जब तक इंसान भगवान नहीं बन जाता तब तक वो कभी भी किसी काल में भी स्थिर नहीं रह सकता। तुलसीदास जी ने इसको अपनी रामायण में लिखा, सरिता जल जल निधि महु जाई, कोई अचल जिम जीव हरि पाई। कहा नदियों का जल तब तक वो शांत नहीं हो सकता जब तक समुद्र में न गिर जाए। तो जैसे प्रत्येक नदी का लक्ष्य है समुद्र, प्रत्येक नदी समुद्र बनना चाहती है। जब तक समुद्र नहीं बनेगी तब तक वो शांत नहीं हो सकती, स्थिर नहीं हो सकती। ऐसे प्रत्येक जीव शिव बनना चाहता है, प्रत्येक इंसान भगवान बनना चाहता है। जब तक वो भगवान नहीं बन जाता तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी, स्थिरता नहीं मिलेगी।
बात समझे? तो इंसान भगवान कैसे बन जाए, इसके लिए जो रसायन तत्व है वो भक्ति है। भक्ति के द्वारा ही इंसान भगवान बनता है। इसीलिए हमारे यहाँ एक संत हुए हैं नाभादास, उन्होंने लिखा है भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नाशे विज्ञान। भक्त भगवत स्वरूप होता है, भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं, आगे इसमें आएगा। तो मैं आप लोगों को जिस भक्ति शास्त्र का विश्लेषण आगे सुनाऊंगा वो इस प्रकार से एक प्रेम का दार्शनिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। लव का कैसे प्रयोग किया जाए, उसका दार्शनिक विश्लेषण क्या है, उसकी मीमांसा आपके सामने प्रस्तुत करता है। इसलिए हमेशा लाइट, लाइफ और लव, इन तीनों के सामंजस्य को, यथार्थ स्वरूप को समझते हुए और अथातो भक्ति व्याख्या श्यामम, ये जो नारद जी की प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा के ऊपर ध्यान दें। उन्होंने ये कहा कि अब आगे मैं भक्ति की व्याख्या करूंगा, और वो भक्ति की व्याख्या कैसे करते हैं ये कल से आपको समझाया जाएगा। प्रार्थना कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।